अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज जाले अगेन विद जाले टॉक्स। आज का एपिसोड थोड़ा सा सख्त लगेगा लोगों को बिकॉज एक सोच प्रेवलेंट है सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में स्पेसिफिकली। आई डोंट नो कि बाहर की ममालिक में इसको किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से परसीव किया जाता है, बट मैंने अपनी पर्सनल सोसाइटी में और अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है कि जानवरों को जीता जाता नहीं समझा जाता, उनकी लाइफ की वैल्यू नहीं समझी जाती। और अगर कोई समझता है लाइफ की वैल्यू को तो उसे इडियोटिक समझा जाता है या उसे सीरियसली नहीं लिया जाता। बट आई एम सॉरी फॉर बर्स्टिंग एवरीवन्स बबल। व्हेन यू हैव अ पेट, इवन इफ यू सी एन एनिमल ऑन द स्ट्रीट, देयर लाइफ हैज़ अ वैल्यू। वो खुदा की क्रिएशन है, अगर किसी और तरीके से मैं आपको ना भी एक्सप्लेन कर सकूँ तो वो अल्लाह मैंने उसे बनाया है किसी पर्पस के तहत। जिस तरह से आप अपना ध्यान रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, उस तरह से जानवरों का भी रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे लॉज एंड रेगुलेशंस अलग तरफ, बट अगर आप किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाएंगे आपको गुनाह मिलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि तकलीफ़ पहुंचाने से गुरेज करें। राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर विद टू रियली ऑसम पीपल एंड आई एम सुप्रीमली ऑनर्ड टू हैव करेजियस पीपल लाइक देम सिटिंग हियर बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू टॉक अबाउट ट्रॉमा जो अभी अभी रिसेंटली गुजरा है उनके साथ। और वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया देखा हो, आपको पता चला होगा कि एक पेट पपी को खामखाई में शूट कर दिया गया फॉर नो राइम और रीज़न। एंड दिस इज़ बीन हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगैन। दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, बट ये इसके ऊपर अब बात करना और इसके प्रिवेंशन के लिए किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। So right now I have Mehak Tehrani and Ghayur Malik sitting here with me. Hello. Hi. How are you? Very good, how are you? Thank you so much for coming to my show. I know it must be really painful right now to talk about the incident, but I would like you to tell ki what has happened. Abhi. So a couple days ago, my maid, when I was just walking out of my room in the morning, she told me that वो कुत्ते को मार दिया. And at that time, I think I just didn't process it, but in the back of my head, I knew that okay, there's literally just one dog in our street who lives right outside our house, and still did not want to process the image or any of it. My friend came to pick me up, and that's when I saw Kobe. And I think obviously just didn't know what to expect even of my own emotions, because this is literally the first dog that I have kept. And it was a stray that, you know, someone who came to our hospital just gave, as in it was like up for an offer, and I was like, sure, I'll take it. And I knew that my mom would have had an issue, or my family wouldn't be too accepting of like a dog inside the house, but it just so happened that, you know, everyone kind of got comfortable, because that's what happens when you know you have that initial interaction or breakthrough. So anyway, you know, it was obviously like shocking to see what had happened. There was blood around the place, and we found out that an undercover sort of situation with either DHA or CBC or whatever the agency, regardless, there were people who came dressed in a shalwar kameez and just shot at the dog, not once, about 3 times. And even though because we live, बताया गया था कि वो पालतू है, बिल्कुल बताया गया था, क्योंकि हमारी गली थोड़ी कुछ कैफेज के भी करीब है, और उधर के भी वेटर्स हमारे घर को जानते हैं, या you know, they knew that dog. They passed by on the same street and she was there just outside our house, so anyone would go, so she'd just come to them for like, you know, petting and She was stuff. a puppy? So yeah, she was like about hardly 6 6 months, yeah. So anyone who'd pass by, like, you know, she'd go. So all the waiters or anyone who'd go by that street, they knew her. The chowkidars or all the people around, they knew, like, you know, she has a space and she lives somewhere. They even told those people. And once the first shot, after the first shot, that's what she said. She ran towards our house. She was also disabled. Like she couldn't like run 100%. Right? I think that's a really important point to also mention. Like I know I've
I've mentioned her age before and the fact that she was a stray, but the fact that she was disabled, right? Like how harmful can a disabled, 6-month-old puppy who's limping clearly be to anyone? And the unfortunate, I think, sentiment around this is that because she was friendly, like वो किसी के पास भी आ सकती है ना, तो potentially उन्होंने पता नहीं दूर से शूट किया या उसको पहले Because बुलाया. there is another dog on the street, right? Okay. So there was a random dog which just came. She had 9 puppies. So we just saw her and we also like put a collar on her. We started feeding her also. She was also on the same street. Okay. So but she was still a stray and she just came and this puppy was with us from like that. So they ran away. वो भाग गया वो- because वो friendly नहीं है उनका आदत नहीं. हाँ. This one was so like because she'd also go to the waiters and anyone who's there कोई भी उसको प्यार करता था वो उसके साथ होती थी. They shot her. She ran towards our house. The guards told them कि ये घर का है, घर का पालतू कुत्ता है. They still shot her. अब जब उसको एक गोली या 2 गोली whatever उसको लग गई, she had nothing in her. Anyway, they shot her again to like kill her or whatever their reason. Yeah. उसके बाद the garbage truck, जो CBC का garbage truck था, we also have photos and all that of it. वो CBC truck आया garbage का to pick her up. And that was like a call that those guys had made after shooting के Shooting, इधर आ कचरा उठा लो, बिल्कुल, exactly. So then these guys told them कि हम आपको नहीं लेके जाने देंगे जब तक कोई आता नहीं. तो उन्होंने बोला ये कचरा है अगर, तो she was like 30-40 feet away from our house. तो उन्होंने कहा अगर ये कचरा है तो आप इसको अपने घर के इसको अपने घर के बाहर रखें अगर आप कहें तो, द डेड बॉडी. सो बस फिर हम बाय द टाइम वी केम शी वाज जस्ट देयर. सो दे डिडंट नो, ऑफ कोर्स दे डिडंट नो व्हाट टू डू या क्या वो करें. एंड देन व्हेन then the Masi told her and the maid told her and then the whole thing happened and then she called me. I came and I saw and I talked to all the waiters and everyone कि भाई क्या हुआ था, क्योंकि everyone knew us also and knew them. I would play with them on the road. So but everyone said the same thing. हमने उनको मना किया था कि ये बट वो मार के चले वो गए. मार के चले. अच्छा इसके बाद मालूम आपने करने की कोशिश की कि वो लोग थे कौन और रीजन क्या था? रीज़न क्या था? अब अगर मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ उस नज़र से देखूँ तो मेरे अगर ऑफ कोर्स इट्स एनिमल क्रूअल्टी, राइट? एब्सोल्युटली. राइट. सो मेरे हिसाब से वो एक क्राइम था, राइट? बिल्कुल, आई रिपोर्टेड टू द पुलिस. आई कॉल्ड द पुलिस फ्रॉम देयर. मैंने कोई 10 बजे शायद उनको पुलिस आया, कॉल्ड 15 असल्ट भाई मुझे DHA CBC के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है क्योंकि उन्होंने मेरा डॉग मार दिया. सो मैं कुछ कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि आपके पास मतलब है ये वो. मैंने कहा हाँ है, जो भी. वो आए, दे केम, दे टुक फोटोज एंड व्हाट नॉट. देन दे सेड, तो मैंने कहा मैं इसके अगेंस्ट जो भी होगी मैं कहा FIR मुझे आप करने देना क्योंकि दिस इज़ अ लेजिट रीजन, इट स्टिल इज़ अ क्राइम. सो मुझे आप FIR उसके ऊपर काटने थे. उन्होंने मुझे बोला कि ये हमारी वो शायद किसी और थाने से या व्हाटएवर हमारे उसमें जुरिडिक्शन में नहीं आता या हमारे एरिया में नहीं आता. आप लेकिन तस्वीरें आगे खींची. तस्वीरें उन्होंने खींची, ठीक है, कि आप क्लिफ्टन थाने में जाके आप इसको वो करें, ठीक है, रिपोर्ट करें. और उन्होंने कहा आपकी बात ठीक है कि ऐसे होना नहीं चाहिए था, ठीक है. मैंने सही है. मैंने उन्होंने कहा कि इसको आप लेकिन वेरी मत करना, इसको आप लेके जाना साथ ताकि वो देख सकें. So that's what I did. I took her with me to the Clifton police station. ठीक है. It's a laughing matter to people. Of like course it is, ना? देख के तो एक बंदा जो जानदार है जानवर उठा के पुलिस Yeah. स्टेशन आया है या stuff like that. तो मैंने उनको बोला देखें ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे है, आप मेरे प्लीज़ आप करें कुछ. उन्होंने कहा ठीक है आप एप्लीकेशन जमा करवा दें लिख के, यूँ कर दें वो कर दें. मैंने ठीक है मैं भी लिख के ले आता हूँ. मैंने कहा मुझे उन्होंने कहा था कि आप देखोगे या जो भी है मैं उसको लेके आया हूँ साथ, ठीक है. तो दे सेड कि नहीं बस ठीक है आपके पास फ़ोटोज़ हैं. मैंने कहा मेरे पास फ़ोटोज़ हैं. उन्होंने कहा ठीक है. उसके बाद मैंने कहा फिर मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मैं शाम को आपको एप्लीकेशन दे दूँगा, इसको मैं दफनाने जा रहा हूँ. दैट्स व्हाट आई सेड. सो द गाय रिप्लाइड टू मी लाइक इनको थोड़ी दफनाते हैं. सो इट रियली पिस्ड मी ऑफ. हाँ इज़ लाइक कि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, उनको दफनाया जाता है, इनको थोड़ी दफनाया जाता है. तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लाके आग लगा दूँ? मैंने आप बता दें मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? नहीं वैसे भी आपका मसला तो है नहीं, हम क्या करें. ठीक है यार. आपका मसला ये है कि क्राइम हुआ है, Yeah. इसको आप रिपोर्ट कर लें और अगर कोई लॉ है तो उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर काम करें. ठीक है. खैर आप मुझे छोड़ दे बताना कि मैंने क्या किया. मैंने क्या खैर मैं उस वक्त वहाँ से उसको लेके क्योंकि आई वाज फीलिंग बैड फॉर इवन देन कि मैं क्यों उसको वो कर रहा I know. हूँ. देन वी टुक हर, वी buried her
everything, and we did that. उसके बाद I came home, we wrote an application. When I went back, I went in, I sat there for a while. Again, whoever like हाँ आपका क्या मसला है, मेरा ये मसला है, then they would just won't care. कह रहे नहीं उधर इतने कुत्तों ने इनको काट लिया, यूँ कर लिया, वो कर लिया. मैंने देखें जिसने जो भी किया, मेरी ये कंप्लेन है, आप मुझे बताएं एनिमल क्रूएल्टी लॉ में है या नहीं है. हाँ. अगर है तो मेरी बात ठीक है, हाँ नहीं है तो ठीक फिर है. हाँ. अब वो फिर उन्होंने मुझे ये क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए कि आप कैसे श्योर हैं कि ये DHA या CBC था. तो आपने देखा क्या, उनके कोई यूनिफॉर्म थे, उनकी गाड़ी थी. अब उनकी गाड़ी नहीं थी, मैं इसमें क्या बोलूँ, ठीक है. उनकी गाड़ी नहीं थी. अब वो किसकी, वो जाहिर सी बात है खुद अथॉरिटी से नहीं करी. मैंने उनकी बात, आप ये समझें, ये तो और बुरी बात है कि अगर ना वो DHA था ना वो CBC था, कि 4 लोग गोलियां चलाते हुए सड़क पे, रैंडम लोग फिर रहे हैं गोलियां मारते हुए, और किसी को कोई पता नहीं है कि किसी के बच्चे को भी लग जाए, किसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और किसी को पता नहीं कि 4 लोग घूम रहे हैं, किसी अथॉरिटी को नहीं पता. खैर स्टफ लाइक दैट हैपेंड. उन्होंने कहा नहीं आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, आपको जो है कोर्ट में या इधर उधर करना पड़ेगा. मैंने ठीक है भाई, जो हो सकता है कि आप कोर्ट में ये जाके फाइल करें कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है. ठीक है, मैंने फिर भी एप्लीकेशन उनको दे दी. मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे इसको, सर आएंगे, फलाना होगा ढिमकाना होगा, जो भी होगा हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे. एंड न्यू के कोई कांटेक्ट तो नहीं करेगा, बट वी स्टिल डिसाइडेड कि वी स्टिल राइट लेटर्स टू ऑल दीज पीपल. हम अपनी तरफ से अपना काम करें. बाकी इफ दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, नाउ इट्स नॉट अबाउट माई और हर और आवर पपी और एनी वन पपी. मैं कल रात को जिस दिन टीपू भाई आए, 6 इतना सा बच्चा दे दे उनको, उन्होंने जहर दे दिया, जिनको हम लोग वी ट्राइड एंड ओनली 1 सर्वाइव. ठीक है, आज अभी आने से यहाँ पहले 3 डॉग सुबह से आ चुके हैं, 2 जिनके अपने घर के लैब्राडोर्स हैं. अब वो लोगों के अपने भी तो कभी बाहर जाते हैं ना, अब ऐसा तो नहीं आपने बंद कर दिया कि मेरा कभी बाहर ही नहीं जाएगा जानवर. उनके अब घर वालों ने वो अपने जो उनके घर के थे, वो गार्डन से कोई बाहर गए, बाहर घर के कहीं को वो फेंक के गए थे, वो घर से बाहर निकला, उन्होंने खा लिया. अभी दोनों हॉस्पिटल में थे, उसमें से एक 1 पास्ट अवे एंड 1 इज स्टिल ओके. अब लोगों के अपने घर, अब दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, इट्स नॉट ओके. सो आई थिंक वट एवर द मेन रीजन, द थिंग विच वी शुड डू और द एनीवन शुड डू, कि आई हर्ड के इस्लामाबाद में अब ये सब चीज़ें I've heard के implement हो रहे हैं, कि ये बैन कर रहे हैं, कि like you know all stuff like that. So if and I've heard also कि वो भी जुडिशरी की तरफ से ही ये वाला एक्शन आया है. So of course here also judiciary or someone or whoever, they need to like you know ban this practice at least. That should be the first step कि आप इसको बैन करें. Later on whatever, this is not the way. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी इस वक्त कि हम सिर्फ कुत्ते पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, ठीक है. सिर्फ स्ट्रे डॉग्स जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में या बर्र सगीर आप बोले वहाँ नहीं पाए जाते, ऑल ओवर द वर्ल्ड है. सो अगर आपको खुद अपनी तरफ से भी समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए, तो आप देख लें दुनिया भर में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ठीक है. एटलीस्ट उनको फॉलो करना शुरू कर दें. WWF भी तो है ना. दिस शुड बी टेकन अप नाउ. I've had enough of it. The reason why you guys are here is because I have been a proponent of this all my life. मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कुछ नहीं करती, बिकॉज यही जो आप वाली के टीपू इज अमेजिंग. आई वांट टू हैव हिम ऑन माय शो आल्सो. आई वांट टू हैव आयशा चंद्रीगर ऑन माय शो आल्सो. आई वांट टू हैव उष्णा आल्सो. दीज आर पीपल हु स्पीक आउट अबाउट इट. सबसे पहले तो मैं, अगर आप लोग ये हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ, हेल्दी टेल्स इज हॉस्पिटल विच दे टेक केयर ऑफ एंड इट्स स्पेसिफिकली फॉर एनिमल्स. एंड एनिमल हॉस्पिटल्स बहुत कम है पाकिस्तान में. मैंने कितनी दफ़ा कोशिश की है, किसी स्ट्रे डॉग को मुझे ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया या बिल्ली मिल गई कि ले जाके किसी रात के बीच में, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला होता. आई थिंक PAF है, क्या नाम है उसका, PNS शिफा के पास जो है उनका, वहाँ मैं लेके गई हूँ अक्सर. नेशनल हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स है, वहाँ मैं लेके गई हूँ, बट है नहीं हमारे पास. तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दैट हॉस्पिटल फर्स्टली. दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मरतबा ऐसे ही देखा है कि ये जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, जहर दे देता है. कुत्ते तो चले बड़ा जानवर है, रैबिट हो जाते हैं या जो भी हो जाता है, और आई डोंट नो, आपको कंटेन करना नहीं आता और आप वैसे ही इंसानों का ध्यान नहीं रखते, तो आप जानवरों की तरफ क्या आएंगे. और मैं सब की बात कर रही हूँ. हम सबसे पहले आके हुकूमत को ब्लेम करते हैं, लेकिन खुद से कुछ नहीं करते. अब ये जो लोग आपने कहा जो जिन्होंने आके शूट किया था, दे वर प्लेन क्लोथ्स, सिविलियन टाइप्स. दे कुड बी एनीवन, दे कुड बी वन ऑफ द नेबर्स आल्सो, जिनको कोई मसला होगा, भैया इन्होंने कुत्ते पाले हुए, स्ट्रे डॉग्स और आएंगे हमारे बच्चे को काट लेंगे, व्हाटएवर द रीजन माइट बी. दिस इज नॉट ऑन. दूसरी चीज़ ये कि लॉ की जो आपने बात की थी, देन आई डोंट नो वेदर देयर इज अ लॉ और नॉट. मैं यूट्यूब पे कह रही हूँ, मैं गूगल पे सर्च कर रही थी
और लिखा हुआ ये आया था कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ विच रिकग्नाइजेज एनिमल सेंटियंस, यानी कि एनिमल क्रूअल्टी के अगेंस्ट बात होती है, लेकिन लॉ है और इम्प्लीमेंटेशन है इस लॉ की, वो मुझे नहीं पता. आई डोंट नो, बिकॉज वो हर चीज़ बहुत ही डाइसी थी ऑन द इंटरनेट. सो आई बिलीव नाउ द नेक्स्ट स्टेप शुड बी दैट दिस शुड नॉट हैपन ओवर एंड ओवर अगेन. आपका जो इंसिडेंट था, इससे पहले एक लाहौर में इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक पपी था और नेबर जो है वो बड़े कोई बैरिस्टर टाइप है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं नाम लेके उनको मनाइन करूँ. उन्होंने आके, जैसे आप बाहर अपने डॉग को वॉक कराने लेके जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि वो कुत्ता जो है उनको बुरी तरीके से देख रहा है. मतलब वो बाद में कभी फ्यूचर में काट सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन बाद में फ्यूचर में काट सकता है. तो ऑब्वियसली जिनका कुत्ता था उन्होंने बोला नहीं वो इस किस्म का नहीं है, और थोड़ी अड़ी तड़ी हो गई, थोड़ी सी मुंह मारी हो गई. Next thing you know, he comes with a gun and shoots the dog in front of them. And it's fine. It's perfectly fine. It's because there's no law. अगर आपको लगता है कि गन यूसेज जो है इतनी खुलेआम हो सकती है किसी भी जानदार चीज़ पे, तो फिर कल के दिन आपके बच्चे होंगे, कल के दिन आपके बूढ़े माँ बाप होंगे, क्योंकि ये बूढ़े हैं, इनका जिंदा रहना जरूरी नहीं है. So this will breed into other things also. If you don't think animals are of any significance or of importance, then it could be any other person, living creature, and everything will be fine and free for all. So ये नहीं हो सकता. दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने सारे जो लीगल मेथड्स है वो कोशिश की अपनाने की. Why did you think of making a video and coming on social media? Why do you think that was important? So the video that I did put up, it was a plea for help. Because I just felt like if we are doing something legally and if someone can back it up, because we know that Pakistan में ऐसे ही चलता है कि किसी को पता होगा तो कुछ हो सकेगा या कोई काम आपको. तो खैर अनफॉर्चुनेटली वो केस अभी फाइल नहीं हुआ है, बट हम लोग ने यही डिसाइड किया था कि वी वुड राइट लेटर्स टू पीपल, बिकॉज we just felt like, okay, how come that there have been activists around or there must have been petitions around, but that hasn't pulled off one law against animal cruelty. Exactly, right? So we just felt like maybe writing to these people would be a better method to get it under their attention, basically. But I guess that was the idea behind the video also, of course. I'm glad that you did it. I'm so glad that you did it, and social media का power बहुत है. बिल्कुल हमने वो आज देख लिया, like जो आज का protest. Please tell me about that. Yeah. And the protest, yeah, exactly. The people who turned up, and it was a very peaceful protest. People were just trying to, just show and to support it. Just to support, and even solidarity. literally we were just all the people just standing there. It may seem like it didn't make any difference, but it did make difference to those people. Yes, it did. Right? Yes. Because सबको कुछ था जो अंदर से आ रहा है या देख रहा है या जो उस जगह से गुजर रहा है, हमें पता है कुछ हो नहीं जाना इधर, but still we want all these people to know कि ripple effect शुरू होना चाहिए. बिल्कुल, and they have, and we stood there, Tipu Bhai was there, we stood there and we just talked about these things, just standing there, so that even anyone who's there can listen कि क्या, what are these guys even on about. And we didn't people turned up, and they also, like Aisha was there also, they talked to the people inside and they said that they have had complaints. ये protest क्या कहाँ था? Where was this? CBC, outside CBC's office, Khaibane Rahat pe. So they said ke they have had like a lot of complaints and stuff, so that's why. But I will say this, that obviously going into the protest, you saw familiar faces that you knew कि अच्छा ये लोग social media में काफ़ी active हैं for in favor of animals, and there should be more people coming out to these protests. हम लोग शायद 20, 25, 30 हो गए थे end तक when we left, and there is power in numbers also. It is. एंड मतलब हम लोग खड़े हुए हैं और वो एक कोई रैंडम जो बुड्ढे से अंकल, ठीक है, वो ये बातें कर रहे हैं कि पागल, कि आप लोग ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो. वो तो prevalent है ना. and he did specifically mention कि कुत्ते बाइट करते हैं इसीलिए तो ये हो रहा है, ठीक है. तो वो एक mentality obviously as you mentioned कि Tipu Bhai mentioned
कि अगर ऐसा ही है कि आप शूट कर लो बिफोर दे हैव इवन अटैक्ड यू, तो फिर every man in the country is a potential Yeah. rapist, Yeah. right? So shoot Potential them too. anything for that matter. चोर है, उचक्का है, कुछ भी हो rapist है, सकता कुछ है, भी हो बिल्कुल, सकता you just है. go and start shooting them. Yeah. एंड यू नो ऑल्सो अगर कंप्लेंट्स होती हैं लोगों की तरफ से इट्स फाइन, ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये हैं ही इसलिए कि हमारी और लोगों की कंप्लेंट्स उनके हल करें, सही है. सो कंप्लेन को हल करने का तरीका जो है ये कि भाई चलो 10 बंदे हायर करते हैं, इनको बंदूकें दो, बोलो जाके गोलियां मार दो. अगर इवन यू नो इट्स जस्ट रैंडम कि हाँ भाई जो दिखे आप मारते जाएं, कोई इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई इनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है. यू कुड रीलोकेट देम. अच्छा, अगर आप इस इलाके में खासतौर सीबीसी डिफेंस के इलाके में पीपल पे अ लॉट ऑफ मनी, टैक्सेस इतने, कंजर्वेंसी चार्जेस इतने, मेंटेनेंस चार्जेस इतने, फॉर एवरीथिंग, सीवरेज से लेकर पानी से लेकर एवरीथिंग के यू पे टैक्सेस टू दीज पीपल. डीएचए को अलग भरते हैं, सीबीसी को अलग भरते हैं, दोनों को भरते हैं. घर बनाने से लेकर एंड तक जब तक आप मर नहीं जाते आप इनको पैसे दे रहे हैं, ठीक है. तो उन पैसों से कि ये एक डॉग और एक उसको ये न्यूट्री नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट व्हाई वुड दे. जब that's what Tipu said also. भाई अगर हम जैसे लोग आप या मैं कर रहे हैं, मैं करके छोड़ रहा हूँ, अब मैं इधर के सारे डॉग्स या सारे एनिमल्स, स्ट्रेज, बी इट कैट्स और वो सबको मैं अपने घर में तो नहीं लेके जा सकता, ठीक है. अब मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है, या ये कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम उनको हाँ कर रहे हैं, हम स्टे कर रहे हैं, हम उनको let them survive. Thank you. ये जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला है, because मुज़ना इब्राहिम, you know मुज़ना इब्राहिम, टीपू, मुज़ना, they started doing this. Exactly. They started doing this, and the dogs that they were injecting and the dogs they were taking care of, they were come and shot. Exactly. At least 20 surgeries in our hospital we have done for strays. Pro bonos? Yeah, exactly, for like neutering surgeries and spaying surgeries, yeah. or whatever it was. And then again जो उनके 3 दिन 4 दिन taking care है, उनको संभाल के then when they let them out, क्योंकि at the end that is where they have to be, right? अब उनको सबको करके भी हमने छोड़ दिया, कॉलर भी पहना दिया, सब कुछ कर दिया कि भाई ये सही है, ठीक. आप उनको अब एक स्ट्रे है जो मुझे कॉलर पहनाने दे रहा है, तो वो काटते तो नहीं फिर रहा सबको जिसको मैंने कॉलर पहना लिया, अदरवाइज वो मुझे कॉलर नहीं पहनाने देगा ना. मैंने उनको कॉलर पहनाया हुआ है, मैंने उसको सब कुछ कर दिया, बिल्कुल. और कोशिश भी नहीं होती कि वो, बिकॉज मैं तुम्हें बताऊँ, ये वो, आई एम सॉरी फॉर एक्चुअली ब्रिंगिंग दिस अप, बट ये वो वाले जो सीबीसी की आप बात कर रहे थे, ये वो है कि अगर आपके घर के बाहर जो है वो मेरे घर के बाहर एक रोड खुदी हुई है, मैं 2 साल से उस घर के बाहर हूँ, और मतलब 2 साल से घर के अंदर हूँ. मेरे घर के बाहर वाली जो रोड है वो 2 साल से खुदी हुई है, लेकिन वो खुदी हुई ही है, वो सही नहीं होती. सीवरेज के रोज कंप्लेंट्स होते हैं सीबीसी में. मैं अगर इन्होंने इतने बोले ना कि इतने हमारे पास कंप्लेन है, आपके पास दूसरी चीज़ों के इतने कंप्लेंट्स होंगे, सीवरेज और व्हाटसोएवर, सो नोबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट. सो बेसिकली आपने जो एक पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया कि एक तो द रीजन व्हाई दीस गाइस आर हियर कि हम एक लॉ तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है, हम उस लॉ की तरफ को चाहते हैं. लॉ जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वी एज सिविलियंस वांट टू डू समथिंग, ठीक है, एंड आई एम टोटली, यू हैव ऑल माय सपोर्ट, आई एम टोटली ऑन बोर्ड फॉर इट, कि इफ वी मेक एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी आर अलाउड टू neuter, spay, take care of stray dogs or cats or whichever animal we find जो सड़क पे जिसकी कोई खैरपा नहीं है, जिसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, और पोटेंशियल डेंजर भी हो सकता है वो. सो लेट अस डू इट, लेट अस एक्चुअली डू दैट स्टार्टिंग. हम आपसे मदद नहीं मांग रहे, हम लॉ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, हम लेकर आएंगे एप्लीकेशंस, लेट्स स्टार्ट अ पिटिशन ऑन फेसबुक, हाउएवर वी वांट टू डू इट, बट लेट्स स्टार्ट विद दैट आल्सो. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग इट, बट हमको मंजर आम पे लाना चाहिए, ठीक है. तो ये चीज तो हमारी प्ले है आज के लिए, ठीक है. आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू गाइस शॉर्ट, बिकॉज एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है, लंबा शो होगा तो लोग देखेंगे नहीं, एंड आई वांट पीपल टू वॉच इट, आई वांट पीपल टू नो. सो 2 चीजें इस शो में से सामने आई हैं. फर्स्टली थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट यू गाइस एक्चुअली केम टू माय शो. एंड आपने जो बात की थी कि सपोर्ट में लोग आए या नहीं आए, देखो, even if people don't, like I had no idea there was a protest, अभी जाके मुझे पता चला कि protest था. हर जगह जहाँ पे भी आपकी आवाज़ आ सकती है, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, wherever, टीवी चैनल्स पे भी आ जाएंगे. जब ये बात फैलती है तो वो ऊपर आ जाती है, नेचुरली बहुत सारी और जगहों पे भी जाएगी. मैं आपको खुदाफिज करने से पहले ये ज़रूर बताऊंगी कि हम पाकिस्तान को समझते हैं कि यहाँ पे एनिमल्स का ख्याल नहीं रखा जाता. तो मैंने आई हैव बीन fortunate enough as an actor to work all over Pakistan. So there's this place in interior Sindh called Islam Court. Okay? बिल्कुल छोटा सा गांव टाइप है, आप वहाँ जाएंगे, कच्चे पक्के मकान है. वहाँ पे जो स्पेशल बात है उस जगह की, वहाँ पे आप हर किस्म के जानवर को फ्रीली घूमते हुए देखेंगे, फ्रीली.
चाहे वो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गाय होगी, भैंसे हो गई, गधे, घोड़े, कुछ भी होगा, वो सब आराम से, मोर भी पाए जाते हैं वहाँ पे। और वो मजाल है जो आपसे या तो स्कैर्ड हो या थ्रेटन्ड हो, वो मोटे मोटे अच्छे ताज़े घूम रहे होते हैं, बिकॉज उनके इर्द गिर्द इंसान जो है वो थ्रेटनिंग नहीं है। उनको बचपन से पत्थर नहीं मारे जाते हैं, उनको धुतकारा नहीं जाता, उनको खाना खिलाया जाता है, दे डोंट डू एनीथिंग टू एनीवन ओवर देयर। सो व्हेन दे कैन कोएग्जिस्ट इन दैट लिटिल गांव जहाँ पे उनकी प्रिविलेज भी कम है, लिमिटेड है, उनके पास भी खाने को रोटी कम होगी, बिजली पानी सबके मसले चल रहे होंगे, उनके इर्द गिर्द अगर जानवर सही और सालिम रह सकते हैं बगैर उनको कुछ किए, तो हम शहर में नहीं कर सकते क्या? आई थिंक दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज शो, एंड आई होप अगर आप ये शो देखें तो प्लीज़ शेयर इट, एंड लेट्स नाउ स्टार्ट टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने के बाद।